So, hi everyone, and let us start with chapter number 12, Public Debt. This is ICSE class 10 economics, and now we are going to do the chapter on public debt. So, public ka meaning I have told you before also. Public over here is represented by the government. Government is representing the public. And what is the meaning of debt? It's called debt, not debt. Some people call it debt, but actually the B is silent. It means loans, it means borrowing. ठीक है, so when the government borrows it is called public debt or government debt. You can call it government debt also, you can call it public debt also. Here is the meaning बहुत सिंपल है. जब सरकार लोन लेती है उसे हम कहते हैं पब्लिक डेट. ठीक है, आइए let us see some differences between public debt and private debt. तो पब्लिक डेट तो हो गया गवर्नमेंट का डेट. ठीक है, पब्लिक डेट इज गवर्नमेंट्स डेट. व्हाट इज प्राइवेट? प्राइवेट डेट इज लोन टेकन बाय द प्राइवेट बिजनेसेस. ठीक है, जो जो बिजनेस वाले लोग लोन लेते हैं ना, ठीक है, दैट इज कॉल्ड प्राइवेट डेट. एंड व्हेन द गवर्नमेंट टेक्स लोन, दैट इज कॉल्ड पब्लिक डेट. So what is the major differences? We'll see 2-3 points, not very important, but we'll see 2-3 points. सबसे पहले compulsion. The government can forcefully take money as loans during tough periods. जैसे कि इकोनॉमी की बहुत खराब हालत हो गई, गवर्नमेंट इज इन्वॉल्व इन अ वॉर विद अनदर कंट्री, तो वॉर के टाइम में, सीरियस इकोनॉमिक सिचुएशंस के टाइम में गवर्नमेंट कैन टेक द लोन ऑन अ फोर्सफुल बेसिस. बट प्राइवेट वाले ये नहीं कर सकते. बिजनेसेस कांट फोर्स अस टू गिव लोन, गवर्नमेंट कैन. ठीक है, रेप्यूटेशन. व्हाट इज रेप्यूटेशन? रेप्यूटेशन इज बेसिकली डिनायल टू पे बैक. So during tough time, during abnormal circumstances, during very tough time like war, natural calamities, economic depression, so during very tough time government may refuse to pay back the loan. आप प्लीज थोड़ा अटेंशन बना के रखना, ठीक है, जल्दी हो जाएगा आपका चैप्टर. Government may refuse to pay back the loan. But can private businesses refuse? No, they will be dragged to the court if they try to refuse. ठीक है, और आप पॉइंट कर सकते हैं टाइम पीरियड. गवर्नमेंट कैन टेक लोन फॉर अ लॉन्गर टाइम पीरियड बिकॉज पीपल हैव फेथ इन द गवर्नमेंट. ठीक है, गवर्नमेंट विल नॉट रन अवे फ्रॉम द कंट्री. बट प्राइवेट बिजनेसेस लॉन्ग टर्म के लिए लोन नहीं ले सकती बिकॉज पीपल डोंट ट्रस्ट प्राइवेट बिजनेसेस. क्या पता उसका मालिक भाग जाए देश छोड़ के, so that can be a problem. ठीक है, तो trust is the factor, faith is the factor. And last part you can do rate of interest. Who will give more rate of interest? Private businesses. Why? Because private businesses में risk ज़्यादा है. People are taking risk when they are lending their money. So the private business has to offer more interest in order to attract the borrowers. But government does not need to attract. Government can forcefully take your money. Therefore, the government is giving low rate of interest. आप प्राइवेट बिजनेस को लोन दोगे ना, you can get 8 to 10% interest in return. बट आप सरकार को लोन दोगे, you can get 4, 5, maximum 6% in return. तो गवर्नमेंट में लोअर होता है. ठीक है, एक बार आप देख लेना इसको. नेक्स्ट वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक वी आर मूविंग टू, एंड दैट इज टाइप्स ऑफ पब्लिक डेट. कितने टाइप्स के सरकारी लोन्स होते हैं? So number 1 is internal and number 2 is external. Internal and external. So what is internal debt? When the government borrows from people within the country. क्या बोला मैंने? Within the country. When the government borrows from people within the country, that's called internal debt. But when the government borrows from outside, World Bank, United Nations, USA, European Union, International Monetary Funds, when the government is borrowing from them, IMF, International Monetary Fund, World Bank, ऐसे foreign agencies से जब government borrow करती है, that is called external debt. So loan coming from outside India is external, loan taken from within India, that is internal. Okay, and एक और point आप इसमें कर सकते हो, when we pay interest on foreign debt, external debt, जब हम लोग external debt पे interest देते हैं ना, तो हमारी country की national income कम हो जाती है. Because the money is flowing outside the country. When we pay interest to World Bank, the money goes out of the country, our national income decreases. But when the government pays interest to people within the country, the money remains within the country. Money only changes hands. वो सरकार से लोगों के पास आ जाएगी. So there is no problem with national income there. नेक्स्ट आता है प्रोडक्टिव एंड अनप्रोडक्टिव. अगर आप मेरी बातों को ध्यान से सुनेंगे तो आपको बहुत जल्दी चैप्टर समझ में आ जाएगा. ठीक है, आपको कैसा लगेगा चैप्टर, थोड़ा कमेंट बॉक्स में भी बताना कि whether you understood or not. ठीक है, तो आपको कैसा लग रहा है, प्लीज एक थम्स अप के थ्रू, लाइक के थ्रू एंड कमेंट में आप जरूर बताइएगा कि ये चैप्टर आपको समझ में आ रहा है कि नहीं. ठीक है, प्रोडक्टिव एंड अनप्रोडक्टिव, व्हाट इज द डिफरेंस? देखो, अगर गवर्नमेंट लोन ले रही है प्रोडक्शन बढ़ाने के लिए, क्या बोला मैंने, प्रोडक्शन बढ़ाने के लिए,
अगर गवर्नमेंट के लोन लेने से प्रोडक्शन बढ़ रहा है, जैसे गवर्नमेंट लोन लेके फैक्ट्री लगा रही है, गवर्नमेंट लोन लेके मशीन्स, बड़े बड़े मशीन्स लगा रही है, प्रोडक्शन बढ़ रहा है कंट्री का, ठीक है, इट इज यील्डिंग मोर इनकम, यील्डिंग मतलब जनरेटिंग, ठीक है, जनरेटिंग, जनरेटिंग मोर इनकम, इट इज यील्डिंग मोर इनकम, सरकार की प्रोडक्शन बढ़ेगा तो ऑफ कोर्स इनकम बढ़ेगा, ज्यादा बेच पाओगे। तो इफ इट इज impacting your production, if it is indirectly impacting your income, that's called productive debt. बट कभी कभी सरकार को पैसे बोरो करने पड़ते हैं नॉन प्रोडक्टिव पर्पस के लिए, जैसे कि यहाँ पे एग्जांपल गिवन इन योर बुक, वॉर के लिए। जैसे आपको पता होगा यूक्रेन रशिया का वॉर हो रहा है, तो यूक्रेन के जो प्रेसिडेंट है, ठीक है, जेलेंस्की, तो यूक्रेन के जो प्रेसिडेंट है उन्होंने बहुत सारे देशों से लोन मांगा। उन्होंने बोला कि यार रशिया हमारे ऊपर बॉम्ब गिरा रहा है, हमें थोड़ा पैसे दे दो, हमें हेल्प करो, हम लोग वापस कर देंगे फ्यूचर में। सो व्हाट इज ही बोरोइंग फॉर? ही इज बोरोइंग टू फंड वॉर्स, ही इज बोरोइंग टू फंड वॉर्स। इससे देश में कोई प्रोडक्शन नहीं बढ़ेगा, ठीक है, तो इट वोंट यील्ड एनी इनकम, वो अपना प्रोटेक्शन के लिए ये लोन ले रहा है, दैट्स अनप्रोडक्टिव लोन, ठीक है। नो इंक्रीज इन प्रोडक्शन इज अनप्रोडक्टिव। नेक्स्ट आता है रीडीमेबल एंड इरीडीमेबल। देखो रीडीमेबल का मतलब होता है रिटर्नेबल, रिटर्न होगा क्या, दैट्स रीडीमेबल। इरीडीमेबल का मतलब होता है नॉट, वी वोंट रिटर्न, नॉट टू बी रिटर्न, नॉट टू बी रिटर्न। जो मैं लिख रहा हूं आप भी लिखिएगा क्योंकि एग्जाम तो आप ही को देकर आना है ना। तो नॉट टू बी रिटर्न, दैट इज इरीडीमेबल। सर इरीडीमेबल मतलब नॉट टू बी रिटर्न मतलब लोन वापस नहीं आएगा? हाँ, लोन वापस नहीं आता है, बट आपको लाइफ टाइम तक इंटरेस्ट आएगा। जैसे रीडीमेबल क्या होता है ना, एक फिक्स पीरियड के बाद, देखो यहाँ पे लिखा ना, आफ्टर अ फिक्स पीरियड, आफ्टर अ फिक्स पीरियड ऑफ टाइम इट इज रीपेएबल, वापस करना पड़ेगा। लाइक 5 साल का लोन लिया तो 5 साल में वापस करना पड़ेगा। तो whoever has given loan to the government will earn interest only for 5 years. But irredeemable में whoever has given loan to the government will not get back the money, but that person will keep earning interest for lifetime. अगर वो 80 years तक जिंदा रहेगा तो 80 years तक उसे लोन मिलता रहेगा। सर अगर वो जल्दी मर गया तो उसका बैड लक, ठीक है। इरिडीमेबल वाले वापस नहीं होते, ठीक है, इरिडीमेबल दे आर नॉट रिफंडेड। ये पूरा प्योरली इंटरेस्ट के लिए, पीपल विल गिव लोन ओनली फॉर इंटरेस्ट, ओनली फॉर इंटरेस्ट। तो इंटरेस्ट में अगर आपको इंटरेस्ट है तो आप इरिडीमेबल लोन सरकार को दे सकते हैं। लोन कभी वापस नहीं आएगा। सपोज आपने 1 लाख रुपए दिया सरकार को, सरकार आपको 1 लाख रुपए कभी वापस नहीं करेगी, बट सरकार आपको एवरी ईयर इंटरेस्ट देगी, ठीक है ना, एवरी ईयर इंटरेस्ट देगी। अब आपकी लाइफ लॉन्ग है तो आप लॉन्ग लाइफ तक इंटरेस्ट कमाओगे, 1 लाख नहीं मिलेगा। ओके, अच्छा नेक्स्ट आता है फंडेड एंड अनफंडेड डेट। तो क्या होता है ना, देखो जब लॉन्ग टर्म लोन होता है ये बेसिकली लॉन्ग टर्म के लिए है, फंडेड वाले जो होते हैं ना ये लॉन्ग टर्म के लिए। वेन एवर द गवर्नमेंट टेक्स लॉन्ग टर्म लोन, गवर्नमेंट क्या करती है ना, एक फंड बनाती है। क्या बनाती है? एक फंड बनाती है। ये बन गया फंड, ये देखो सरकार ने एक बैग बना दिया। अब क्या होगा, एवरी ईयर द गवर्नमेंट विल पुट सम मनी इन दिस, ठीक है ना, इसके अंदर पैसे जमा करेगी और ये धीरे 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 इसके अंदर पैसे जमा होते चले जाएंगे, ठीक है। तो आप देख सकते हैं धीरे धीरे इसके अंदर पैसे जमा हो रहे हैं, ठीक है ना। दिस इज कॉल्ड फंडेड डेट। फंडेड डेट मतलब आप एक फंड बना लो, एक पैसे जमा करने की फंड बना लो और हर साल आप थोड़े 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 करके पैसे उसमें जमा करते रहो, क्योंकि आपको कभी ना कभी तो वापस करना है ना। वी आर टॉकिंग अबाउट रिडीमेबल लोन। तो आपको क्या करना होगा, आपको पेमेंट करना पड़ेगा ना। इन ऑर्डर टू पे, इन ऑर्डर टू रीपे अ फंड इज क्रिएटेड, ठीक है ना। वापस पैसे करने हैं, सपोज आपको 20 लाख रुपए वापस करने हैं, तो 20 लाख रुपए मान लो 10 साल बाद वापस कर रहे हैं, तो आपने एक फंड बना लिया और हर साल थोड़ा 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 करके आप पैसा उस फंड में डालोगे। ये देखो पैसे आप इस फंड में डालोगे, एवरी ईयर यू विल पुट सम मनी। फिर जब 20 लाख रुपए जमा हो जाएंगे आप उससे रीपेमेंट कर दोगे। दिस इज कॉल्ड फंडेड डेट, जहां पे आप फंड बनाते हो। ये लॉन्ग टर्म के लिए होता है। और शॉर्ट टर्म के लिए क्या होता है, शॉर्ट टर्म के लिए देखो अनफंडेड डेट होता है। अनफंडेड डेट्स आर फॉर शॉर्ट टर्म, नो नीड टू क्रिएट एनी फंड। आपने पैसे लिए 3 महीने के लिए, काम किया पैसे वापस कर दो, काम किया कमाया पैसे वापस कर दो। नो नीड ऑफ क्रिएटिंग फंड, नो नीड ऑफ कलेक्टिंग मनी, अक्यूमुलेटिंग मनी, नो नीड ऑफ ऑल दोस। तो ये फंडेड डेट नहीं होते, आप कोई फंड नहीं बनाते हो इसमें। आई होप आपको समझ में आ गया, ठीक है। देन आता है वॉलंटरी डेट एंड कंपल्सरी। तो वॉलंटरी डेट क्या होता है, जैसे सरकार आज हमारे देश में जो सरकार है
वो कैसा लोन लेती है? वॉलेंट्री लेती है, थोड़ी ना जबरदस्ती लेती है। गवर्नमेंट आज भी लोन ले रही है, हमारी जो गवर्नमेंट है वो भी लोन ले रही है, बट दैट इज ऑल वॉलेंट्री, मतलब जिसको देना है वो दो, जिसको नहीं देना वो नहीं देगा। बट जब टफ इकोनॉमिक टाइम्स आता है ना, खराब इकोनॉमिक सिचुएशंस आता है, जैसे वॉर का टाइम आ गया, नेचुरल कैलामिटीज, ठीक है ना, तो ये सब जब टफ पीरियड आता है ना, तो गवर्नमेंट डज नॉट गिव यू चॉइस, उस टाइम कंपल्सरीली गवर्नमेंट फोर्सफुली, क्या वर्ड है यहाँ पे, फोर्सफुली आपसे लोन ले लेगा कंपल्सरीली। तो वो बहुत खराब टाइम में ही होता है, ठीक है, जनरली नहीं होता है, ठीक है, ये होता है इमरजेंसी लाइक सिचुएशन, जो वॉर हो गया, इन्फ्लेशन, टू मच इन्फ्लेशन, तो वैसे सिचुएशन में कंपलसरी लोन लिए जाते हैं। थैंकफुली हमारे देश में कभी ऐसा सिचुएशन नहीं आया है। एंड वॉलंटरी तो अभी तो वॉलंटरी है, राइट नाउ इट इज वॉलंटरी, दोज हु वांट टू गिव दे कैन गिव एंड दे विल अर्न इंटरेस्ट। अच्छा, नेक्स्ट आता है लास्ट, लास्ट आता है ग्रॉस डेट। व्हाट इज ग्रॉस डेट? टोटल डेट ऑफ द गवर्नमेंट आउटस्टैंडिंग। सर आउटस्टैंडिंग मतलब, आउटस्टैंडिंग मतलब येट टू बी रीपेड। आउटस्टैंडिंग का मतलब होता है येट टू बी रीपेड। सर हमें भी लिखना है क्या? हाँ, तुम एग्जाम दोगे तो तुम ही लिखोगे ना। येट टू बी रीपेड उसको बोलते हैं आउटस्टैंडिंग डेट। तो सरकार ने लोन लिया था लेट्स से 20 करोड़ का, उसमें से सरकार ने 5 करोड़ वापस भी कर दिया है, ठीक है, 20 करोड़ का लोन लिया, 5 करोड़ वापस भी कर दिए, तो अभी कितना बचा? 15। दिस इज ग्रॉस डेट। 15 इज ग्रॉस डेट, the total debt which is outstanding. Outstanding मतलब yet to be repaid. How much is yet to be repaid? 15 crores is yet to be repaid. This is gross debt. बट अभी देखो ग्रॉस डेट कितना है, कितना हमें वापस करना है? 15 करोड़। तो हमने क्या किया ना, हमने एक फंड बना लिया, ठीक है, हमने क्या किया, हमने एक फंड बना लिया 15 करोड़ वापस करने, और इस फंड में हम लोग पैसे डालने लगे। एवरी ईयर वी आर पुटिंग मनी, एवरी ईयर वी आर पुटिंग मनी, एवरी ईयर वी आर पुटिंग मनी। तो यहाँ पे ना पैसे जमा होने शुरू हो गए, पैसे जमा होने शुरू हो गए। कितने जमा हो गए? अभी तक 2 करोड़ जमा हो गए, तो 15 करोड़ देने थे और 2 करोड़ जमा हो गए, तो 15 माइनस 2 13 करोड़। दिस विल बी कॉल्ड व्हाट? दिस विल बी कॉल्ड नेट डेट। यहां नेट डेट लिखा है ना, नेट डेट, एग्जांपल लिखोगे तो जल्दी समझ में आएगा। दिस इज कॉल्ड नेट डेट, ठीक है। ग्रॉस डेट आफ्टर एक्सक्लूजन। एक्सक्लूजन मतलब डिडक्ट करना है, क्या डिडक्ट करना है? एनी टाइप ऑफ सिंकिंग फंड और एनी अदर फंड जो आपने बनाया। फंड्स जैसे यहाँ पे मैंने फंड बनाया, फंड बनाया मतलब पैसे जमा करने के लिए मैंने फंड बनाया, ठीक है ना। मुझे वापस करना है 15, तो मैंने अभी तक बैग बना दिया, बैग में पैसे जमा कर रहा हूँ, 2 करोड़ जमा भी हो गए, तो और 13 करोड़ बचा है, दैट इज माई नेट डेट। तो एग्जाम्पल्स आपको जल्दी समझ में आएगा। तो दिस वाज द चैप्टर। आपको चैप्टर कैसा लगा आप जरूर बताइएगा, एंड अपने फ्रेंड्स के साथ भी इन वीडियोस को शेयर कीजिएगा, ठीक है। आई एम वर्किंग हार्ड फॉर यू, तो आप भी थोड़ा मेरे लिए वर्क कर सकते हो अपने दोस्तों के साथ इस वीडियो को शेयर करके। एंड डू गिव दिस वीडियो थम्स अप एंड कमेंट में बताना कि आपको कैसा लगा ये चैप्टर, ठीक है। ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जाम्स। अभी और दो तीन चैप्टर्स बचे हैं हमारे, वो सब भी कराऊंगा, बट ऑल द वेरी बेस्ट। आप अच्छे से प्रिपरेशन कीजिए एंड बहुत अच्छे नंबर से पास होइए, दैट इज व्हाट आई एक्सपेक्ट फ्रॉम यू, ठीक है। थैंक यू सो मच एवरीवन।